Hello everyone. So this is the fourth and final part of body fluids and circulation from NCERT निचोड़ by नीट खाका जी. So हमारा लास्ट का 2 टॉपिक बच गया था, that is lymphatic system and disorders of circulatory system. So first start करते हैं lymphatic system से. So it includes lymph, lymph vessels and lymph nodes. Lymphatic system के 3 important components हैं as it is NCERT में दिए गए हैं, that is lymph, lymph vessels and lymph nodes. इसको lymph glands भी कहा जाता है. As the blood passes through the capillaries in tissues, some water and soluble substances are filtered out from plasma intercellular spaces to form tissue or interstitial fluid. It has same mineral distribution as that in plasma. इसका मतलब ये हुआ कि जब हमारा ब्लड टिश्यूज़ के अंदर कैपिलरीज के थ्रू पास करता है तो उस टाइम कुछ वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस फिल्टर हो जाते हैं और वो इंटरसेलुलर स्पेसेस में आ जाते हैं. इस फिल्टर्ड आउट इंटरसेलुलर सब्सटेंस को हम कहते हैं टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ. एक और इम्पॉर्टेंट बात है दैट इट हैज सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा. Some tissue fluid enters lymphatic system and the tissue fluid in them is called lymph. It drains back to major veins. मतलब जो भी टिश्यू फ्लूइड लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर करता है उसको हम लिम्फ कहते हैं और वो ड्रेन बैक हो जाता है मेजर वेन्स में. नाउ लिम्फ इज़ अ कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग लिम्फोसाइट्स. मीन्स लिम्फ में कभी भी आरबीसी नहीं होता, क्योंकि अगर वो प्रेजेंट होता तो ये रेड कलर्ड होता, और क्योंकि ये कलरलेस है इसका मतलब यहाँ पे एरेथ्रोसाइट्स दैट इज़ आरबीसी एब्सेंट है और यहाँ पे सिर्फ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होता है. Now what are the functions of lymph? So it is the middleman between blood and tissues. Tissue fluid helps to exchange nutrients, gases, etc. between bloods and cells. So blood and tissues और blood and cells के बीच का जो भी process है वो ऑपरेट करता है lymph के through. So this is also known as middleman between blood and tissues. It carries plasma protein synthesized in liver to blood, transports digestive fats through lacteals in the intestinal villi, fat soluble vitamins, hormones, etc. Filtration of bacteria and foreign particles and lymph node produce WBCs that is lymphocytes and antibodies. So ये इसके 5 इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो NCERT में दिए गए हैं और एज इट इज़ तुमको ये याद होने चाहिए. इसमें कुछ भी समझाने का नहीं है, ये तुमको याद ही करना होगा. Now let's start with disorders of circulatory system. So the first important disorder is hypertension, also known as high blood pressure. The pressure of circulating blood on the walls of blood vessels is called blood pressure. Normal blood pressure is 120 by 80 mmHg. It includes systolic, that is pumping pressure. It is 120 mmHg, and the diastolic or resting pressure, which is 80 mmHg. When the blood pressure is higher than normal blood pressure, it is called hypertension. If an individual repeatedly has the BP of 140 by 90 or above, it is called hypertension. ये डेटा तुमको याद रहना चाहिए. यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि हाइपरटेंशन के लिए बीपी कितना होना चाहिए, कितना कौन से रेंज से ऊपर होना चाहिए. सो द आंसर इज अबव 140 by 90. देन इट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन. It leads to heart diseases and affects vital organs like brains, kidneys, etc. Next disorder is CAD, that is coronary artery disease or atherosclerosis. Here, calcium, fat, cholesterol and fibrous tissues are deposited in the coronary artery. It makes the lumen of artery narrower and thereby affects the blood supply. अब कोरोनरी आर्टरीज वैसे आर्टरीज होते हैं जो कि हार्ट में ब्लड का सप्लाई करते हैं, तो वो आर्टरी डायरेक्ट हार्ट को इनर्वेट कर रहा है. अगर उसी में कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइब्रस टिश्यूज़ का डिपोजिशन होता है तो ऑब्वियसली हार्ट में हमारा ब्लड का सप्लाई कम होगा. इस कंडीशन को हम कहेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज और एथेरोस्क्लेरोसिस. इट मेक्स द ल्यूमेन ऑफ आर्टरीज नैरोवर एंड देयरबाय अफेक्ट्स द ब्लड सप्लाई. नाउ द नेक्स्ट डिसऑर्डर इज एंजिना, also known as angina pectoris, an acute chest pain due to oxygen deficiency of heart muscles. It occurs due to improper blood flow. It is common among middle-aged and elderly. Means अगर हार्ट में improper blood flow होगा तो obviously हार्ट में decreased oxygen supply होगा, जिस कारण से chest pain होता है, which is known as angina pectoris. And nowadays it is most common among middle-aged and elderly people. Now the remaining these 3, इन तीनों में स्टूडेंट्स को बहुत ही कन्फ्यूजन होता है. सो कौन से डिजीज़ का क्या सिम्टम है इसको बहुत ही ध्यान में रखना. रिमेनिंग वाले तो बच्चों को याद रह जाते हैं, बट लास्ट के दिन दैट इज हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक में मैक्सिमम कन्फ्यूजन होता है. हार्ट फेलियर, ऑल्सो नोन एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर. इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंप ब्लड इनफ टू मीट द नीड्स ऑफ द बॉडी. कंजेशन ऑफ द लंग्स इज द मेन रीजन ऑफ हार्ट फेलियर. सो जब भी हार्ट इनफ अमाउंट में ब्लड पंप नहीं कर पाएगा तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हार्ट फेलियर. And the main reason of this is congestion of the lungs. Next is cardiac arrest. So when the heart stops beating, then the condition is known as cardiac arrest. And the final one is heart attack. So it is the sudden damage of heart muscles due to inadequate blood supply. So कुछ की वर्ड्स हैं जिसको अगर तुम ध्यान में रखो तो तुम्हें इन दिनों में कन्फ्यूजन नहीं होगा. हार्ट फेलियर में हमारा हार्ट जब इनफ अमाउंट में ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, दैट इज कॉल्ड हार्ट फेलियर. कार्डियक अरेस्ट में हार्ट स्टॉप्स बीटिंग. दिस इज द की वर्ड, स्टॉप्स बीटिंग.
एंड हार्ट अटैक में देयर इज़ अ डैमेज इन द हार्ट मसल्स। सो इसी के साथ हमने ये पूरा चैप्टर दैट इज़ बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन को बहुत ही कम टाइम में अच्छे से रिवाइज कर लिया है और कोई भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स या पॉइंट डायग्राम कुछ भी स्किप नहीं किया है। सो आई होप तुम लोगों को ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम ह्यूमन फिजियो का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।